हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर 25 क्वेश्चन है ये, जो कि आप मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आंसर बताऊंगा, तो आप मेरे से पहले कोशिश करना कि आंसर टिक कर सको। मैं 1-2 सेकंड लेट ही करता हूँ आंसर बताने में, और फिर लास्ट में देखना कितने आपके करेक्ट आंसर है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू द मैच्योर इंसुलिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, C peptide is added to the proinsulin. C peptide is removed from the proinsulin. B peptide is added to the proinsulin. B peptide is removed from the proinsulin. तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सी पेप्टाइड इज रिमूव फ्रॉम द proinsulin. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, select the odd one with respect to the vectorless method of gene transfer. Biolistic, disarm pathogen mediate, gene gun, माइक्रो इंजेक्शन। जिसका करेक्ट आंसर है वो है डिसआर्म पैथोजन गन। ये क्या है? वेक्टरलेस मेथड नहीं है ये ये क्या है? ओड वन है विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टरलेस मेथड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट है। If Hinthard was used to cut the DNA during the isolation of gene interdent to the facilitate the cloning process, the vector DNA should be cut by using Hind second, E. coli first, BAM, HI1, Hind third. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर इन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, एंजाइम that catalyze the removal of group from the substrate by mechanism other than the hydrolysis leaving double bond belong to which class of enzyme? Class first, class second, class third, class fourth। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, क्लास फोर्थ। Next question. Question number 5. Which of the following primary generated an action potential when eventually lead to atrial systole? Bundle of his avian, Purkinje fire, pacemaker of heart। तो इसमें क्या है? Pacemaker of heart primary generate an action potential which eventually lead to atrial systole। Next question. Question number 6. In Periplanta american, the head is connected with thorax by a short extension of pronotum, prothorax, metathorax, mesothorax। तो इसका करेक्ट आंसर है मेसोथोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन द बॉक्स बिलो आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और ब्लड? फर्स्ट है थ्रोम्बिन, फिब्रिन, आरएच एंटीजन, एल्ब्यूमिन, कैल्शियम आयन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 3। Next question, question number 8. Which of the following procedure is included in downstream of the processing in biotechnology? First है ligation of foreign DNA with the plasmid. Second है isolation of desired DNA. Third है separation and purification of the product. Fourth है amplification of DNA। तो इसका करेक्ट आंसर है separation and purification of product process is included in downstream processing in biotechnology. Next, question number 9. How many cycles of PCR are required for obtaining 256 molecules of double-stranded DNA from a single molecule of double-stranded DNA? तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 8 साइकिल चलेगी किसके लिए? 256 मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। नेक्स्ट है एक फिगर है जिसके हमें कनेक्शन बताना ए एंड बी का। ए एंड बी जो ये दो फिगर दी गई है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इनका हमें कनेक्शन बताना है। दोनों फिगर का कॉमन फीचर्स, बिलोंग टू द सेम फाइलम, आर मेटामॉर्फिकली सेगमेंटेड, exhibited pulmonary respiration are terrestrial vertebrates। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द ऑर्गेनिज्म हुज अडल्ट फॉर्म क्या है? आर रेडियली सिमेट्रिक बट लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकली इज एक्सक्लूजन characterized by the presence of
वाटर कैनाल सिस्टम, सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स वाटर वस्कुलर सिस्टम, सूडोकोलान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वाटर वस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct statement with respect to the human. Ethmoid and sphenoid are unpaired facial bone. Next option, maxilla and mandible are paired facial bones. Next option, option number 3, coccyx and scalum are fused vertebrae bones. Next option, patella, ischium and pubis fuse to form coxal bone. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है coccyx and scalum are fused with vertebral bones, जो कि क्या है, फॉल्स है। Next question, question number 13. The sum of total number of tibia and fibula in both limbs of human is equal to the number of floating ribs, more than the number of lemur vertebrae, less than the number of patellates, higher the number of scaled vertebrate. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन either kept silence or ignored the observation made by X, who told about inheritable factor influence phenotype. Identify the scientist X, select the correct option, Lamarck, Mendel, Malthus, Halden। तो इसका जो करेक्ट है वो है मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस दो स्टेटमेंट्स दी हुई है हमको और करेक्ट बतानी है। द फ्रेंचेस ऑफ गैलापागोस आइसलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन द फेवर ऑफ बायोजियोग्राफिकल evolution. Adaptive radiation refers to the power of adaptation in an individual variety of environment. Both statements are correct, both statements are incorrect. A is correct and only B is correct. तो इसका correct answer है only statement A is correct. तो ऑप्शन नंबर 4 थर्ड क्या होगा इसका correct answer. Next question, question number 16. All of the following favor the formation of concentration of urine except suppression of release of antidiuretic hormone, activation of osmoreceptor in the body due to the change in ionic concentration, increased release of vasopressin from hypothalamus. Option number 4 है transportation of substance facilitated by special arrangement of Henle loop and vasa recta. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुप्रेशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटीडियूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. अबाउट हाउ मैनी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द किडनी ऑफ एन ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन। देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने दिया है इन बोथ ऑफ द किडनी, मतलब ईच किडनी नहीं है, दोनों किडनी में पूछा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 2 मिलियन, क्योंकि एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन्स होती है, 1 मिलियन। ठीक है, तो दोनों किडनी में पूछा है तो कितनी होगी, 2 मिलियन। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ही हमको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Select the incorrect statement with respect to the drug and alcohol abuse. Nicotine stimulates the release of catecholamines from the adrenal medulla. Smoking increases carbon monoxide content in the blood. Coca has inhibiting action on CNS. धतूरा show hallucinogen property. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है, इनकरेक्ट। कोका एल्कलॉइड हैज इनहिबिटिंग एक्शन ऑन CNS. नेक्स्ट क्वेश्चन, in human adult the temperature necessary for spermatogenesis under normal condition is equal to the internal body temperature, slightly more than the environment temperature during summer season, 2 से 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature, 2 to 5 centigrade higher than the normal body temperature. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके लिए क्या चाहिए, 2 से 2.5 सेंटीग्रेड से नीचे चाहिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायनासोर सडनली डिसअपेयर फ्रॉम द अर्थ अबाउट, जो डायनासोर है वो डिसअपेयर हो गए अर्थ से कब,
65 million year ago। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following has been found to be effective as an emergency contraceptive if used within 72 hours of unprotected coitus to avoid possible pregnancy? Diaphragm, IUD, Volt, cervical cap। तो ये क्या होगा? इंट्रायूटेराइन डिवाइस। IUD is correct answer. As a chance of fertilization very high from the day of dash to dash of the 28 days of menstrual cycle, it is called डैश पीरियड। तो इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 17 to 24 फर्टाइल, 14 to 17 स्टेराइल, 14 to 21 स्टेराइल, 10 to 17 फर्टाइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 10 to 17 डेज में क्या हो गया? फर्टाइल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रोग्राम लाइक RCH स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन एंड क्लिनिकल हेल्थ केयर। नेक्स्ट है reproductive and child healthcare, rehabilitation and child healthcare, rehabilitation and crucial health care। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लार्ज नंबर ऑफ विच ऑफ ओवेरियन फॉलिकल डिजनरेट इन ह्यूमन फीमेल फ्रॉम अ बर्थ टू प्यूबर्टी। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्राइमरी फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड with respect to the disease and their positive agents, select the correct option। कॉमन कोल्ड प्रोटोजोआ, ठीक है, एलिफेंटिसिस, हेलमिंथिस, अमीबोसिस वायरस, निमोनिया बैक्टीरिया। तो इसका हमको मैच करनी है। जो कॉमन कोल्ड है वो क्या है? एक है वायरस, ठीक है, तो एक का क्या हो गया? थर्ड। जो एलिफेंटिसिस है वो क्या है? हेलमिंथिस, ठीक है। जो अमीबोसिस है वो क्या हो गया? प्रोटोजोआ। और जो निमोनिया है वो क्या है? बैक्टीरिया। तो आप ये देख लीजिए, ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, और अमीबोसिस क्या है? फर्स्ट, सी का प्रोटोजोआ, और निमोनिया क्या है? डी का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैथ्स में भी आ सकता है, और इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 4। तो इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।